Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 348. آج میں ان کو یہ چیز اپنے مذہب کی سکھا رہا ہوں کہ ہر ایک پیالی 3 پیالیاں ہیں تو 3 بھرو، 4 ہے تو 4 بھرو، 6 ہے تو 6 بھرو، 10 پیالی ہیں تو 10 بھرو، کوئی پیالی خالی مت رکھو. اور اتھاپن کی کریا جب دعا دو اتھاپن گھٹ پاٹ اتھاپن جی، تو اس وقت بھی پہلے دیکھ لو کہ کوئی پیالی خالی تو نہیں، پھر دعا دو. بعد میں دعا اتھاپن کی ہو گئی، نیاز ابھی پورا ہوا، یہ پیالیاں پی جاؤ، دوسروں کو پلا دو. ایک ٹیپا بھی، ایک بوند جتنا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور کپڑے سے ان پیالیوں کو چوس لو کہ ایسا نہ ہوئے کہ 2-1 چھوٹے سے ٹیپے اس میں رہ گئے ہیں اور وہ گر جاویں. نہیں، قائم کرن کی دعا سے پہلے، تھام باندھنے سے پہلے کپڑے سے نیاز کی پیالیوں کو چوس لو کہ پانی چوسا جاوے، ٹیپا گرے نہیں. اس طرح سے نیاز کی عزت کرو، ایک ٹیپا بھی گرنا نہیں چاہیے. بڑے ادب سے پیو. دل تو چاہتا ہے اور بھی باتیں بولوں نیاز کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، پھر کبھی صحیح، لیکن ابھی میں آتا ہوں سکریت کے لیے. سکریت سیرا ہے. بہت سے ناندی کرنے والے وہ جو سکریت کا سیرا اوپر آتا ہے نا، نیاز ڈالتے ہیں تب وہ سکریت ہوتی ہے، مگر سیرا بنا کے پلیٹیں رکھ دیتے ہیں نیاز کے لیے سکریت کے واسطے، اور باقی 1-8 پلیٹ ناندی میں آتی ہے. تو ناندی کرنے والا کہتا ہے اللہ میرا سکریت. بھائی یہ سکریت نہیں ہے، یہ سیرا ہے. سکریت اس کو کہتے ہیں جس میں نیاز ڈالا ہوئے، اس میں نیاز ڈالا ہوا نہیں ہے. اور سکریت اگر بچ جاوے تو اس کی ناندی نہیں کرو، اس کو بانٹ دو، تھوڑی تھوڑی سب کو دے دو. وہ بکتی نہیں، بھلے کتنی بھی بچ جاوے، لیکن سکریت کا ودھارا بچا ہوئے اس کی ناندی مت کرو، وہ بخشیش ہے. تھوڑی تھوڑی سب کو دے دو. جیسے نیاز بچ گیا تو تھوڑا تھوڑا سب پی جاؤ. سکریت میں ہم کو پیروں نے فرمایا کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن، یہ 5 چیزوں سے سکریت بنی. سیرا تو آپ بھائیوں بناتے ہو، لیکن فرق اتنا ہی ہے کہ سکریت میں دودھ ڈالو. بھائی بہت دودھ نہیں ملتا ہے، تنگی ہے، تو تھوڑا سا ضرور پیر کے فرمان کے حساب سے اس میں دودھ ڈالو. کھیر یعنی دودھ، کھانڈ، گرت یعنی گھی، تیل کی، ویجیٹیبل گھی کی سکریت مت بناؤ، سیرا مت بناؤ. کبھی یہ چیزیں نہیں ملتی تو ہمارے پیروں نے اس کے لیے کھڑی ساکر بتائی ہے، اور یا سوکی دراکش، اس کے بیج اور ڈانکھڑی نکال ڈالو، وہ سکریت کے طور پہ یوز ہو سکتی ہے نیاز ڈالنے کے بعد. یا مڈل ایسٹ کے اندر کھجور لیتے ہیں، کھجور میں سے گٹھلی نکال کے اس میں نیاز ڈال کے سکریت کے طور پہ دیتے ہیں. کھجور بھی چلے، کھڑی ساکر بھی چلے، اور سوکی دراکش بھی چلے. مگر جو سکریت یہ بن سکے کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن والی، تو یہ سکریت بنانی چاہیے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے ضرور پیر کی باتوں میں کچھ نہ کچھ شامل کر دیتے ہیں. میں آؤں گا جبھی تو آپ کو بولوں گا کہ یہ درباری کہاں سے چالو ہوئی. ہمارے مذہب میں درباری ہے ہی نہیں. درباری تو وہ ادھے پور کے اور جے پور کے نوابوں راجاؤں کے دربار میں درباری ہوتی ہے. ہماری درباری کہاں سے آ گئی؟ چلو پھر کہوں گا درباری کی بات. ابھی سیرا بنتا ہے تو معلوم نہیں کون اس کے اندر خسخس بھی ڈالتے ہیں، الائچی بھی ڈالتے ہیں، چھول چھول کے بادام بھی ڈالتے ہیں. ابھی کس پیر نے کہا کہ اس میں بادام ڈالو؟ سکریت میں، سکریت کے سیرے میں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اپنی بڑائی ظاہر مت کرو. بادام، پستہ، الائچی، خسخس برابر نہیں، کشمش بسمش کچھ نہیں چاہیے. دودھ چاہیے اور گاؤں کا آٹا یا روا چاہیے.
प्योर घी चाहिए, खंड चाहिए, बस। अपनी तरफ से पीर की बताई हुई चीज में उंगेजा मत करो, सिंपल बनाओ। और सुकरीत इतनी दो कि आदमी लेके ना फौरन मुंह में डाल लेवे। चने के दाने जितनी थोड़ी सी सुकरीत दो, थोड़ी सी। बहुत से लोगों को इतनी सुकरीत मिलती है, वो नहीं खाते, फेंक देते, बच्चे भी फेंक देते। फेंकने के लिए उनको चांस मत दो, चने के दाने जितनी सुकरीत जरा सी दो। आदमी हाँ, कभी किसी घर को ले जानी है तो मांग लो, कभी मेरे घर में 3-4 बच्चे हैं, उनके लिए मुझे सुकरीत दो, मांग लो। लेकिन देने वाला जो सुकरीत है वो इतनी थोड़ी सी सुकरीत देवे कि उसी वक्त लेके मुंह में डालो। सुकरीत में संस्कृत का जो शब्द है सुकरीत, सु यानी अच्छा, करीत यानी हाथ से किया हुआ। तो सुकरीत सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हमारे नेक आमाल को डिपिक्ट करती है, जाहिर करती है। भाई दूध की तरह तुम निर्मल बनो, खंड की तरह मीठे बनो, कड़वे मत बनो, घी की तरह नरम बनो, आटे की तरह, भोजन की तरह खुद दुख उठा के वो जलता है, आटा जलता है, आग पे पकता है, हमारा पेट पालता है। तो इसका कहने का मतलब पीर का ये है कि आटा दुख उठा के भी दूसरों का पेट पालता है, तो तुम दुख उठा के भी दूसरे का भला करो। ये आटे में से सीखो, मीठे वचन बोलना खंड में से सीखो, घी की तरह नरम होना, घी को जरा गर्मी लगे तो पिघल जाता है, मतलब कि तुम जिद्दी मत बनो, जल्दी मान जाओ, और दूध की तरह पाक बनो। और जब इस सुकरीत डाले तो रूहानियत आ जाती है, इबादत वाले बनो, नूरानी बनो। यह है सुकरीत का मतलब, उसके अंदर सिंबॉलिक चीज है। हम जब भी नियाज निकालते हैं तो बाजू में हम बत्ती रखते हैं। इसको हमारे गिनानों के अंदर पीर ने फरमाया है कि जोत जगाड़ी ने जुमलो जी बैठा, जोत जगाड़ी ने सामी राजा बैठा। ये जोत की सिंबॉलिक फॉर्म है। उसमें एक और चीज भी है, पुराने जमाने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो घी का 7 दीवों की, जैसे ये इधर पड़ी हुई है, 7 बल्ब रखते हैं, वो 7 वाट निकाल के 7 दीवे रखते थे। घी के जो दीवे हैं उसमें से जब भी वो जलता है और जो वास निकलती है वो एंटी जर्मिसाइड है, जर्म्स को मारने वाली है। बैक्टीरिया मर जाते हैं, मक्खियां मच्छर भाग जाते हैं। आपके घर में कभी मच्छर बहुत हो में घी का दीवा जला के देख लो, कर लो, उस रूम में मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। मगर घी प्योर होना चाहिए। आटे का दीवा बना के उसमें घी डालो, वाट जलाओ, देख लो। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है जोत की। जमात खाने के अंदर हाजिर इमाम की जोत, जोत यानी नूर, हर वक्त हाजिर मौजूद है। कुरान शरीफ के अंदर सूरत नूर में जो एक लैंप का जिक्र किया है हमारे अल्लाह ने, ये लैंप हाजिर इमाम का नूर है। मगर ये गटपाट के पास जब हम वो लैंप जलाते हैं तो इमाम के पीर के हुक्म से जलाते हैं, और ये उधर होनी चाहिए कि जिधर मेन दुआ पढ़ाने वाला है उसके पास होनी चाहिए। हमारी प्रणाली का के अंदर ये भी है, और ये चीज बाइबल में भी है, हदीस में भी है, हमारे गिनानों के अंदर है कि हम जमात खाने के अंदर धूप लोबान करते हैं। मैं पर्सनली अपने मजहब की चीजों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हूं। पीरों ने जो कहा है मैं उसी के ऊपर पालना चाहता हूं और कहता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि गिनान में सुकरीत बनाते वक्त बादाम का के, किशमिश का के, खसखस का कोई जिक्र नहीं, इसके लिए हमें उसको डालना भी नहीं चाहिए। इसी तरह से जमात खाने के अंदर अगरबत्ती जलाना मैं शामिल नहीं हूं, मैं मंजूर नहीं करता, मैं सलाह भी नहीं देता। अगरबत्ती के अंदर एक तो लकड़ी होती है, दूसरा घास या पेपर की कटिंग, उसका पाउडर बना के और थोड़ी सी खुशबू डाल के वो जलाते हैं।
اگربتی جماعت خانے میں برابر نہیں، گھر میں جلاؤ. جماعت خانے میں لوبان چاہیے یا دھوپ چاہیے، امبر چاہیے. اور وہ بھی یہ جو زنزبار کے اندر بہت سے لوگ اودی بناتے ہیں، وہ لکڑیاں کاٹ کے اور اس کے اندر وہ کھنڈ ڈال کے پھر اس کے اوپر وہ ڈالتے ہیں، وہ لکڑی بھی نہیں چاہیے جماعت خانے میں. جماعت خانے میں لکڑی مت جلاؤ، دھوپ لوبان چاہیے. دنیا بھر کے اندر سب سے اچھا لوبان یا چائنا میں ملتا ہے یا انڈونیشیا میں ملتا ہے، نیروبی میں بہت ملتا ہے. مولا نے 2 پیسے دیے ہوئے ہیں تو ادھر سے منگاؤ. دھوپ ہوئے یا لوبان ہوئے، اگربتی نہیں. تو لوبان اور دھوپ کرنے کا کارن کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ نبی کے زمانے کے اندر اللہ نے حکم کیا موسیٰ کو کہ ہارون کو کہو کہ وہ ہر روز دھوپ لوبان کرے اپنے جماعت خانے کے اندر. حضرت ابراہیم کے زمانے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر نبیوں کو یہ حکم ہوتے رہے جماعت خانوں کے اندر دھوپ لوبان کرو. اپنے اسلام کے اندر رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر عود دکھاؤ. عود اودی کہتے ہیں، مگر یہ اودی کھنڈ کی بنی ہوئی لکڑی کے اوپر لگائی ہوئی وہ نہیں. عود اسپیشل ملتا ہے، وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے، لوبان کی طرح ہوتا ہے. لوبان سے جو روحانیاں ہیں، ایٹماسفیئر بدبو سے، باس وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے. خوشبودار جگہ کے اوپر روحانیاں آتی ہیں. جہاں بھی گندگی ہوئے گی، باس آتی ہوئے گی، وہاں سے روحانیاں فرشتے دور چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ رسول اکرم واعظ کرتے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، نماز ہو چکی تھی، تو بہت سے لوگ پسینے سے تر ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پسینے میں سے باس نکلتی ہے. رسول اکرم نے بلال کو حکم کیا مراشی لے کے آؤ. گلاب پاشی لے کے آیا، اور گلاب کا پانی انگلش میں روز واٹر کہتے ہیں نا، تو رسول نے فرمایا کہ سب کے اوپر چھڑکو. اور روز واٹر چھڑکنے سے ایٹماسفیئر میں سے پسینے کی باس دور ہو گئی. حضور فرمایا مسجدوں کے اندر عود دکھایا کرو. ہمارے پیر صدر دین نے گھٹ پاٹ کی کریاؤں کرتے وقت یہ جو گھٹ پاٹ کے ٹھام واسن ہے نا، دھوپ اور لوبان ہوتا ہوئے، لوبان موسٹ اینٹی سیپٹک ہے. کوئی زخم اچھا نہیں ہوتا، لوبان کو پیس کے گھی کے اندر کپڑے کے اوپر ڈال کے باندھ دو، کھولنا مت. 8-10 دن تک وہ زخم اچھا ہو جائے گا. کیسی بھی دوائیں کرو گے، اگر زخم نہیں اچھا ہوتا تو لوبان کو گھی میں پیس کے کپڑے پہ ڈال کے باندھ دو، اچھا ہو جائے گا. اور گھر کے اندر اگر لوبان کرو گے تو مکھیاں، مچھر، بیکٹیریا، جنتو وغیرہ بھاگ جائیں گے. موسٹ اینٹی سیپٹک چیز ہے. اس لیے اس لوبان کی دھوئیں کے اوپر اس میں کاربن نہیں. مگر جب ہم اگربتی جلاتے ہیں نا تو اگربتی کے اندر لکڑی بھی ہے اور گھاس اور کاغذ کا وہ بھوکا ہوتا ہے، اس لیے اگربتی میں سے جو نکلتا ہے نا اس میں کاربن ہوتا ہے، لوبان میں کاربن نہیں ہے. اور یہ ٹھام جب ہم لوبان کے اوپر رکھتے ہیں تو ٹھام کے اوپر اس لوبان کی ایک مائکروسکوپک فلم آ جاتی ہے جو اینٹی سیپٹک ہے. کوئی بھی آدمی اسی نیاز کی پیالی میں سے پیالی پانی پیے، نیاز پیے، اس کو کوئی بھی ایک دوسرے کو چیپی روگ نہیں لگے گا. ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک دفعہ مولا کے سامنے ایک آدمی نے عرض کی کہ خداوند ادھر 1-2 آدمی ہیں، ان کو شک ہے کہ ٹی بی ہوتا ہے تو وہ بھی نیاز پیتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں ذرا ریزنٹ کرتے ہیں نیاز پینے کو. مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا، اس کا کوٹ پکڑ کے سب کھینچ کے کہتے ہیں مجھے بتاؤ نیاز پی کے کون بیمار ہوا؟ وہ تو ڈر گیا. میں فرمایا واللہ اگر بیمار نیاز پیے گا تو وہ اچھا ہو جائے گا. بیماری کے لیے ایک خاص دوا ہے. ساری جماعت جب نیاز پی چکے، قائم کرن کی دعا بھی ہو گئی، تھوڑا سا نیاز جو بچ گیا ہے وہ نیاز بیماری کی شفا ہے.
बीमारी दूर करता है। तो नियाज में हमारी बत्ती भी चाहिए, धूप लोबान भी चाहिए। फिर सदरुद्दीन ने धूप लोबान की दुआ बनाई थी। धूप लोबान खेवे, खेवे यानी दुख रहा है, अगर चंदन निवासना ते वासना पीर पैगंबर भोगवे, ते वासना घटपाट ना छाम पवित्र करे, ते वासना स्वर्ग थी संचरे। कितनी अच्छी दुआ है कि धूप लोबान अगर चंदन, ये जो तुम जमात खाने के अंदर दुखाते हो, फरमाया कि पीर पैगंबर एंजॉय करते हैं इसको, फरिश्ते देव देवता एंजॉय करते हैं, और ये जो वास है ये स्वर्ग में से, जन्नत में से उतरी है, इससे घटपाट के छाम पवित्र होते हैं। ये दुआ पढ़ के हम घटपाट के छामों को धूप लोबान दिया करते थे। तो धूप लोबान हमारी प्रणालिका में से एक प्रणालिका है। अभी सुकृत जब भी हम लेवें, दो हाथ से लो। जिस तरह नियाज भी दो हाथ से पियो, इसी तरह से सुकृत भी दो हाथ से लो। और कभी घर ले जानी है तो बड़े आराम से कागज में बांध के घर ले जाओ, लेकिन बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी ध्यान रखो कि घटपाट की और सुकृत की और छुरे की और जमात खाने की, अपने मजहब की कोई भी तरीके से बेअदबी नहीं होनी चाहिए। बेअदबी की बात कहते कहते मुझे एक बात याद आ गई। बहुत से लोगों की आदत है, बैठे हैं ना, पानी पीने जाना है तो अपनी जगह पे तस्बीह रख जाएंगे। बहुत दफा मैंने देखा है, कोई भाई आदमी आया है या बच्चे आए हैं, देखा नहीं नीचे तस्बीह के ऊपर पांव आ गया और चले गए। भाई तस्बीह जिसके ऊपर दाना फिरा फिरा के नाम लेते हो मौला का, उसको तो जमीन पे रखना ही नहीं चाहिए। कहीं बाहर जाना है, तस्बीह साथ लेके जाओ, जगह चले जाएगी तो उठते ही काहे को हो। आधा घंटा पानी नहीं पिया तो ना सही, लेकिन कभी उठ के जाना है तो तस्बीह लेके जाओ। रुमाल रखना है तो ठीक है, आपकी खुशी वो रख दो, लेकिन तस्बीह को जमीन के ऊपर मत रखो। तस्बीह की इज्जत करो, इसके ऊपर मौला के नाम फिरते हैं। हर एक इस्माइली के पास तस्बीह होनी चाहिए। हमारी प्रणालिका में तस्बीह एक प्रणालिका है। इमाम के फरमान में है कि तुम किधर भी हो, जब इस दुआ का टाइम आ जाए तो तुम अपनी तस्बीह निकालो और बगैर कुछ शर्म किए हुए अपनी दुआ पढ़ लो। तस्बीह होनी चाहिए। मैंने खुद मौलाना हजरत इमाम को देखा है, खीसे में हाथ डाला है और अंदर तस्बीह फिरा रहा है। हजरत इमाम को मैंने देखा है, खीसे में हाथ है और तस्बीह फिरा रहा है। एक आध दफा देखा तो ऐसा बाहर निकाल के दिखाई दी उसने कि देख तस्बीह है। और प्रिंस सदरुद्दीन तो चालू तस्बीह निकालते रहते हैं। हर एक इस्माइली बच्चे के पास तस्बीह होनी चाहिए, और छोटी उम्र से तस्बीह का उपयोग और तस्बीह की इज्जत बताओ। ये जो हम 33 दाने की तस्बीह छोटी सी रखते हैं ना, ये सुन्नियों की तस्बीह है, हमारी नहीं। हमारी तस्बीह 101 दाने की बराबर बनाओ। वो छोटी तस्बीहां जो हमको सिल्वर जुबली के ऊपर झूरे में मिली थी 2 बरस पहले, वो तस्बीहां हमारी प्रणाली का नहीं है। मिडल ईस्ट के अंदर हर एक आदमी के पास, जितने ये अरब है ना, वो लेफ्ट हैंड से तस्बीह फिराते रहते हैं, बातें करते रहेंगे, राइट हैंड से चाय पीते जाएंगे, तस्बीह फिराते रहेंगे। वो तस्बीह कोई अल्लाह का नाम और जिक्र के लिए नहीं फिराते, आदत के तौर पे फिराते हैं। लोगों की आदत होती है किसी जगह बैठे मिलने के लिए, कोई पेंसिल से खेलता है, कोई पेपर नाइफ से खेलता है, कोई कागज से खेलता है, कोई फुटपत्ती से खेलता है। इस तरह वो तस्बीह से खेलते हैं। टॉयलेट में जाते हैं तो एक हाथ में तस्बीह होती है। वो तस्बीह हमारी नहीं। हम अपनी तस्बीह खुदा ताला की मोहब्बत और उसकी जिक्र के अंदर करते हैं, और तस्बीह की भी इज्जत रखो। तो दीनदारों, मैंने आज बहुत टाइम ले लिया, 1.25 घंटा हुआ है। अभी मैं बाकी की चीजें फिर किसी दिन इंशाल्लाह मिलेंगे। जुड़ा, सताड़ा, नांदी, थार, सुफरा, जैसे मैंने आपको कहा, पीर की मानी जिसको हमने दरबारी बना दिया, इसका फिर मैं जिक्र करूंगा। इनको बोलो पांव लंबा करे। अभी जमात खाने की इज्जत बताता हूँ और अभी पांव लंबा करते हो, बोलो। अभी देखो दीनदारों, सवाल आए हैं, मैं टूक में इनके जवाब देता हूँ।
देखो दीनदारों, इसमें दो सवाल हैं। एक तो शाजो दीदार का, कि जब भी हम दुआ के अंदर शाजो दीदार का पंजा लेवें तो हमारा पंजा बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, आंखों के साथ आंख मिलनी चाहिए, मुंह से हम बोलें, बहुत जोर से नहीं बोलें लेकिन मन में भी नहीं, ऐसा बोलो शाजो दीदार, वो भी बोले शाजो दीदार। और जब भी फिर हाय जिंदा करते वक्त कई लोग यूं कर लेते हैं, ऐसा नहीं, आंख के साथ आंख मिलाओ, है जिंदा कायम पाया, है जिंदा कायम पाया। ये चीजें हमें सीखनी चाहिए और छोटी उम्र में हमको बचपन में सिखाई भी जाती हैं। जुमे की नमाज की जो बाबत है, मैं जमात को, मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं जमात को कोई इस तरह कह सकूं कि अल्लाह मेरा रोज जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जुमे के दिन जाया करो, नहीं। लेकिन इमाम ने फरमाया मुसलमानों के साथ मिलो, जाओ जुमे की नमाज पढ़ो, लेकिन जमात के ऊपर हुक्म नहीं हो सकता। ये हुक्म करने की शक्ति मौला की है। जैसे कि साहब ने उधर कराची में फरमान किया और खारादर के जमात खाने में, हमारे जमात खाने के अंदर जुमे की नमाज होती है, लेकिन ऐसा यहाँ कोई फरमान नहीं। इसके लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि जुमे की नमाज पढ़ना अच्छा है, जाना चाहिए, लेकिन जमात को मैं फर्ज नहीं डाल सकता। Why do the righteous suffer? Why do the bad things happen to good people? Can suffering be educational? सवाल यह है कि अच्छे लोग दुखी होते हैं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर मैं ये मानूं तो नाफरमानी करता हूँ। अल्लाह रसूल ये फरमाते हैं, हमारा इमाम ये फरमाता है कि तुम अगर दुनिया में अच्छे रहोगे तो सुखी रहोगे। अगर सुख का मतलब मालदारी है तो मैं उसको सुख नहीं मानता। अभी अभी मैंने मौला का फरमान सुनाया कि तुम्हें दुनिया की प्रॉब्लम्स आएंगी, तुमको दुख आएंगे, मगर तुम दुखी नहीं बनोगे। तो सफरिंग का मतलब ये नहीं है, दुनिया के अंदर दुख सुख तो लगे पड़े हैं। हम इस्माइली अपने मुसलमान भाइयों के अंदर एक ही फिरका है, हम दूसरे नहीं मानते। हम मानते हैं कि हमारा पहला जो जन्म था उसके किए हुए गुनाह हमको इस जन्म में उठाने पड़ते हैं। कोई बच्चा छोटी उम्र के अंदर अपंग हो जाता है, अंधे हो जाते हैं। आज देखो एक 11-12 महीने की लड़की आज हमारी गुजर गई, हमारे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर की लड़की आज गुजर गई, 11-12 महीने की है। उसकी गई लाइफ की जो कर्जा था उसका इधर इतने टाइम में पूरा हो गया, बस उसका हिसाब पूरा हो गया, चली गई। हमें मौत की फिलॉसफी समझनी चाहिए। मौत की फिलॉसफी हमारे आमाल और कर्म के साथ चलती है। हमें जितने भी दुख मिलते हैं वो हमारे गुनाहों के कारण से मिलते हैं। अगर वो आदमी ये बोले कि एक अच्छे आदमी ही सफर करते हैं और बदमाश लुच्चे मजा करते हैं, तो मेरा मतलब ये है कहने का उस भाई को जिसने ये सवाल लिखा है कि उसने सुख दुख का जो माप है वो गलत समझा है। मालदारी और मोटर और बंगले कोई सुख की बात नहीं है, ये माप बराबर नहीं। ये मेजरमेंट इसी मत करो। मेजरमेंट तो ये है कि तुम्हारे दिल के अंदर शांति और खुशी कितनी है, उसका नाम सुख है। गरीब बहुत सुखी हैं, मालदार बहुत दुखी हैं। मोटरों बंगलों को सुख मत समझो। और ये अमीर लोगों के जो दुख हैं वो गरीबों को पता नहीं है, और गरीबों के जो दुख हैं वो मालदारों को पता नहीं है। असल सुख क्या है? संतोष। संतोष। आधी रोटी मिली है वो दुखी नहीं होता। उसने दूसरे की बिरयानी देख के कभी मन ललचाया नहीं, दूसरे की मेड़ी देख के खुद की झोंपड़ी के ऊपर कभी वो नाराज नहीं हुआ, खुद पांव से चलता है और किसी को मोटर में देख के कभी उसको हसद नहीं हुआ। गरीब के दिल के अंदर खुदा ताला ने जो
संतोष की और खुशी की दौलत दे रखी है, वो बेहिसाब दौलत है। उस दौलत की कदर करो और मांग नहीं करो कि या मौला तू मुझे अंतर का सुख दे। ये चीज हकीकती समझ से मिलती है, हकीकती समझ। कलाम इमाम मुबीन में एक जिक्र है, फरमान, मैं अपनी वाजों में बोल चुका हूं। एक दफा सुल्तान मोहम्मद शाह पूना गए, गाड़ी में से उतरे, जूना जमात खाना था पुणे का, बैठा था। अभी जो जमात खाना है वो ऊपर मेड़ी वाला है। सब गाड़ी से नीचे उतरे, बैंड वालों ने सलामी दी, ऑफिसर्स खड़े थे, सब अंदर जाने लगे। गाड़ी में से निकल के ऐसा घूमे तो दूर एक नीम का दरख्त झाड़ था, उसके नीचे एक बदख्शानी, उसको कोढ़ की बीमारी थी, लेप्रेसी। लेप्रेसी के अंदर जिस तरह से साबुन को पानी में डालो तो कैसा घुल जाता है, ऐसा उसकी उंगलियां, हाथ की, पांव की गलती जाती हैं। लेप्रेसी बहुत बुरी बीमारी है। अफ्रीका में और खास करके 3-4 जगहों के ऊपर, यानी सेंट्रल अफ्रीका में, जायर में, हमारे इधर तांजानिया में भी लेप्रेसी बहुत है और ये चेपी रोग है। लेपर के नीचे नजदीक नहीं जाना चाहिए, इसमें उंगलियां झड़ जाती हैं, यहाँ तक कि हाथ भी गलते जाते हैं। जैसे बर्फ को रख दो तो बर्फ आस्ते आस्ते गलती जाती है, ऐसा शरीर गलता जाता है। दूर खड़ा था, साहब को देख के हाथ बांधे, बहुत हंसा, इतना खुश था कि बात छोड़ दो। सब थोड़ा उसके नजदीक गए, वो जानबूझ के दूर खड़ा था क्योंकि कोढ़ की बीमारी है, लोगों से दूर रहना अच्छा है। थोड़ा नजदीक साहब गए, साहब को जब नजदीक आता देखे, घुटने टेक के इतना खुश हुआ, मौला को सलाम किया। और फरमाया उसको फारसी में, तुम कैसे हो? कहते खुदाबंद बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं खुदाबंद। तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं खुदाबंद। कोढ़ की बीमारी है, दुखता है, अंगलियां झड़ रही हैं, मौत नजदीक आ रही है। तो कहता मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ। सब पूछते हैं तुझे कुछ कहना है? तो कहते कुछ नहीं कहना। तुम्हें कोई दुख है? तो कहता कुछ नहीं। बताओ, ये सुखी कि शराब पी के पीछे में बैठा है, बैंक में करोड़ शिलिंग है, बड़ी अच्छी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, फर्स्ट क्लास आलीशान बंगला है और डायबिटीज की बीमारी पकड़ी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का एक वाल्व खराब है, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, रात को नींद आती नहीं, गोलियां खाता है तो 2 घंटे आंख लग जाती है। बताओ, ये सुखी के वो सुखी? किसको सुख मानते हो? सुख का माप तुम्हारी नजर में है, वो जुदा है, और इमाम की नजर में है, वो जुदा है। इमाम के मेजरमेंट की तरफ देखो, मन का सुख मांगो, मन का सुख जिसमें संतोष होवे। किसी ने गाली दी है तो बुरा नहीं लगा, किसी ने बुरा कर दिया है तो बुरा नहीं लगा, इसका नाम सुख है। ये सुख रूहानी आदमियों को मिलता है, ये सुख इबादत करने वालों को मिलता है, ये सुख उनको मिलता है जिनके ऊपर इमाम राजी होता है। दुनिया के माल दौलत को सुख मत समझो। जी टेप ले दो। दो जहान का बादशाह, वो हमको दुआ आशीष दे रहा है। वो दुआ आशीष से हमारे गुनाह मुआफ होते हैं, हमारे दुख दूर होते हैं, लेकिन उनके के जो ईमान रखते हैं। इमाम की दुआ आशीष से हम हरे और आबाद हैं। दीनदारों, आप में से कोई लोग समझते तो हैं, इमाम इधर आया, उसका बड़ा भेद था, हमको नहीं लेकिन आखे देश को इमाम ने बचा लिया है। मैं ज्यादा उसका खुलासा नहीं कर सकता। इमाम ने आके नवंबर 1982 में
صرف ہم کو نہیں لیکن آخر دیش کو مولا نے بچا لیا ہے. اس کی دعا سے اس میں بڑی قوت ہے. کوئی خدا نہ کر مرن پانی تو دیکھی آپ نے جماعت کا نام یاد جوڑا کیا. جماعت کو سماوت ہوئی مذکور زیارت کیا عربی آسما ہوئی જેનો અગર ગુજરાતી જમાતને કોઈ વખતે વાંચી સંભળાવવામાં આવે તો બહુ શીખવા યોગ્ય ગણાય. જમાત કારણ કે જમાતના દરેક લોકોને તેની માહિતગારી હોવી જરૂરી છે. بہت ساری اچھی یہ سجیشن ہے اور میں نامدار ایسوسیشن کو عرض کرتا ہوں کہ یہ سجیشن واقعی بہت اچھی ہے. جماعت کو اس کا ترجمہ بتانا چاہیے. رسول اللہ کے زمانے میں جب ہی مدینے کے اندر اسلام آ گیا، نبی بھی ہجرت کر کے مدینے آ گئے، مسلمان بہت ہو گئے. وہ زمانے میں گھڑیال نہیں تھی، کلاک ٹاورز نہیں تھے. کرسچن لوگ تو گھنٹہ بجاتے تھے اور یہودی لوگ کچھ ڈرم کی طرح کے شور بخور کرتے تھے. تو یہاں سجیشن آیا کہ مسلمانوں کو نماز کا وقت بتانے کے لیے کیا کہیں، تو اذان شروع ہوئی. ابھی آج کل کے زمانے کے اندر ہم اپنے جماعت خانوں میں اذان نہیں دیتے، سب کے پاس گھڑیال ہے، سب کو پتہ دعا کا یہ وقت ہے. لیکن جماعت خانے کے دروازے پہ جماعت بھائی کھڑا ہوتا ہے، جب دعا کا ٹائم ہوتا ہے نا، کوئی آدمی پانی پیتا ہے، کوئی آدمی باہر باتیں کرتا ہے، کوئی آدمی نیچے کھڑے ہیں. تو جب ہی مکھی صاحب کو پوچھتے ہیں، بھائی جماعت بھائی تم در پہ یعنی دروازے کے اوپر ہو، در پہ جماعت بھائی. کئی لوگ بولتے ہیں گت کے جماعت بھائی، نہیں، در یعنی دروازہ. در پہ جماعت بھائی، وہ کہتے بندو حاضر. اس کو زور سے بولنا چاہیے تاکہ نیچے سننے والے جلدی سے اوپر آ کے دعا میں شامل ہو سکیں. یہ اذان ہے اور یہ جماعت خانے کے اندر ضروری چیز ہے. لیکن کوئی چھوٹا جماعت خانہ ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، کبھی اس طرح نہ بولا جائے تو یہ کوئی ہماری پرانالی کا ٹوٹتی نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے. اگربتی زبان کی بابت میں بول گیا ہوں، لیکن دعا، تسبیح، فرمان، گنان ان کو چھوڑ کے اور اگربتی اور لوبان کے پیچھے پڑنا وہ تو ٹھیک نہیں ہے. دیکھو لا میرے گنان بولاتا ہوئے تو ہم ہاویں اور ہیل چال کرے، کوئی یعنی اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے یا ہم کو اٹھ کے جانا ہے تو اس میں کوئی حرکت نہیں. لیکن گنان میں بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب بھی جماعت تسبیح کے لیے کھڑی ہوتی ہے، جس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم تسبیح کھڑا ہو کے کرنا، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، دوسری دفعہ بولوں گا. وہ ایک بہت بڑی سیریمنی ہے. ساری جماعت جب تسبیح کے لیے کھڑی ہوتی ہے اس وقت تو کوئی طرح کی ہل چال نہیں ہو رہی تھی. میں نے اوپانگا میں دیکھا ہے 2-3 دفعہ تسبیح کے اندر ضرور کوئی باہر سے والنٹیئر آئے گا اور پھس 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 کرے گا. مجھے ادھر کا پتہ نہیں، ادھر میں کمتی آتا ہوں. فرمان چالو ہوئے کئی لوگ باتیں کرتے ہیں اور خاص کر کے وہ دفتری کے پاس آ کے فرمان کے لیے باتیں کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. پن ڈراپ سائلنس ہونی چاہیے، کوئی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے دعا میں، تسبیح میں اور فرمان میں.
अगरबत्ती वगैरह के लोबान है कि इधर उधर जाना, के बातें करना, के नांदी लेके आना। बहुत दफा मैंने देखा है जमात तस्बीह निकल रही है और नीचे से नांदी वाले ऊपर नांदियां ले आते हैं, इधर नांदी रख रहे हैं, उधर नांदी रख रहे हैं। उनको बाहर ठहरना चाहिए, फकत तस्बीह पूरी हो जाए। हाँ, जब ये गिनान शुरू होवे उस वक्त आके अपना जो काम काज करना है, यानी नांदी के थाम बासन रखने हैं, कुछ मेहमानी की चीजें रखनी है, भले रखो, लेकिन तस्बीह, दुआ और गिनान, फरमान, इनके अंदर तो कोई तरह की हिलचाल नहीं होनी चाहिए। और ये आदमी सच कहता है कि लोबान या अगरबत्ती करना फरमान और तस्बीह वगैरह से ज्यादा जरूरी समझ लिया हमने। ये तो हमने खुद ही अपने मजहब को काट देने की बात की है, नहीं होना चाहिए। हाँ, लोबान शाम के वक्त दुआ से पहले लोबान आता है मुखी कामड़िया के पाठ के ऊपर। तो जब भी हमारे पास आता है तो हम एक या दो हाथ से हम सलवात पढ़ते हैं। सलवात पढ़ने का मतलब ये है कि जिस तरह हजरत हारून को अल्लाह ने हुक्म किया कि जमात खाने में लोबान करो, ये हमको ये चांस मिले कि मैंने लोबान किया, सलवात पढ़ के शाह पीर के हुजूर में मैं लोबान लेके गया। ये एक किस्म की मान और इज्जत की बात है और इसको आवकार कहते हैं, भाई खुशामदीद, वेलकम करने के लिए। पुराने जमाने के अंदर राजाओं रजवाड़ों के दरवाजे के ऊपर लोबान होता था और हर एक मेहमान को वो लोबान खिलवाते थे, जाते वक्त भी आते वक्त भी। ये भी राजा का दरबार है, सब आदमी, सच पूछो होना तो दरवाजे पे ही चाहिए, एक एक को दे के देने जाने की जरूरत नहीं। लोबान मुखी कामड़िया को दे के दरवाजे पे खड़ा हो जाना चाहिए। जो आदमी आवे वो लोबान ऐसा मुंह के ऊपर उसको लेके पोख के सलवात पड़े। तो ये हमारे मजहब की एक प्रणाली का है। देखो दीनदारो, हजर इमाम के पास इमामत का जौमा भी है, पीर का जौमा भी है। इमाम का जो शरीर है ना वो पीर की तरह है और उसका जो नूर है वो खुदावंद आलमीन की जात है। तो इमाम जब कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ तो वो हजर इमाम का नूर दुआ नहीं करता, पीरी जौमा दुआ करता है। और वो दुआ तो नूर के पास होती है, अल्लाह के पास होती है। तो इमाम जब ये फरमावे कि मैं तुमको तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए या मरने वाले की आत्मा के लिए मैं दुआ करता हूँ, तो वो दुआ पीर के तरीके से मौला हमको देते हैं। पीरों ने ऐसा कोई गिनान नहीं बनाया कि वो खाली मौत के वक्त ही रिजर्व होवे। अभी वो तो बेचारा मर गया, अभी उसको क्या बोलते हो कि लावो लावो घास बंधावो रेठाटी। ये तो हमको नसीहत देनी है, समी सांझ को बोलो, ये गिनान कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि सुनने वाले हैं उनको समझ आवे कि मुझे एक दिन मर जाना है, मुझे दफन होना है। पहली मंजिल पे क्या होगा, दूसरी मंजिल पे क्या होगा, तीसरी मंजिल पे क्या होगा। जितने भी गिनान हैं जिसमें मौत का जिक्र है वो समी सांझ को बोलने के लिए है। वो लाजिम नहीं है कि उस वक्त मरने मौत के वक्त ही बोले जाएं। और मैयत पड़ी है तो बेनती के गिनान भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पीरों ने ऐसा कोई इस तरह से गिनान नहीं बनाए, लेकिन पीरों ने ये गिनान बनाए हैं, घटपाट के बैठे गिनान, घटपाट ना उभा गिनान, वेंती ना गिनान, सवार ना चौगड़िया, सांझ ना चौगड़िया, सुबह के गिनान, वो बनाए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये गिनान मैयत के लिए ही रिजर्व है, नहीं, कुछ भी कभी भी बोल सकते हो। I couldn't follow this question. Will you please repeat it? You were personally against mere children becoming life education concepts. Can you please explain to why Hadithullah Allah is practiced? अभी हजर इमाम तो फरमान करे, मानना ना मानना तो जमात के ऊपर है ना। अमुक मंडलियां हैं उनके अंदर एज की लिमिट है,
کہ بھئی یہ سرٹن ایج تک وہ ممبر نہیں بن سکتے. لائف کے لیے امام نے فرمان کیا ہوا ہے. امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ تم لائف میں آنے کے لیے اپنے روزندہ خرچ میں سے تھوڑا تھوڑا بچاؤ. سینما, ہوٹل, ریسٹورینٹ, موج શોખ માંથી પૈસા બચાવી એમાંથી તમે 51%, उस वक्त 51% मौला कबूल करते थे लाइफ के लिए, अभी वो निकल गया. तो इमाम का यह फरमान है कि तुम खुद अपनी कमानी में से, माँ बाप मालदार हैं इसके लिए बच्चे को उन्होंने लाइफ में डाल दिया कि और दूसरी मंडलियों में डाल दिया, उसका सवाब और किस्म का है. सवाब तो है लेकिन उस बच्चे को उस चीज की समझ नहीं. होना तो ये चाहिए कि ठीक है तुम उसको बच्चे को 9वीं रात में डाल दो, 18 बरस 20 बरस के बाद वो कमाना शुरू करे, फिर उसको कहो कि अभी तू अपनी कमानी में से पैसे बचा के लाइफ का मेंबर बन, तो उसको पता लगे. मगर अभी हमारे पास पैसे हैं इसके लिए होता है. हजरत इमाम का ऐसा कोई फरमान नहीं है कि तुम किसी भी एज के अंदर किसी भी मंडली में ले लो, बल्कि रिस्ट्रिक्शंस हैं. अभी पालना ना पालना ये तो फिर जमात और मुखी कमड़ियों के ऊपर है. Why does one get so much sawab by reciting salawat? How can the sawab be transferred to the next person? ये तो फरमान है इमाम का. इमाम के फरमान के ऊपर हुज्जत नहीं हो सकती. इमाम फरमाया है कि सवाब है इतना इतना कि जैसे बारिश होती है उसके टीपे कोई गिन नहीं सकता, इतना एक सलवात का इतना सवाब है कि फरिश्ते उसका हिसाब नहीं कर सकते. सवाब का मतलब एक नेकी जो हमारे आत्मा को पॉलिश करे, आत्मा को एनहेंस करे, आत्मा को ऊंचा उठाए. जैसे कि हम एक लुकमा खाते हैं उससे हमको पोषण मिलता है, तो एक नेकी का जो सवाब होता है ऐसी लाखों करोड़ों नेकियां करो तो एक सलवात का सवाब होता है. ये तो फरमान है इमाम का. इसके लिए सलवात में इतना सवाब है वो हमको मानना चाहिए. और इमाम फरमाया सलवात बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो. ट्रांसफर करना इमाम के हाथ में. इमाम फरमाया कि जो मरने वाला जो गुजर गया तुम उसके पीछे फरमान पढ़ो. फरमान के अंदर है कि मरने वाले के पीछे सलवात पढ़ो, इससे उसको मुक्ति मिलती है. तो ट्रांसफर होता तभी तो इमाम का फरमान है. हाउ कैन इट बी ट्रांसफर? इमाम का फरमान सुन के तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता ना. बहुत से दफा इसका सवाल का जवाब दिया गया है. इस्माइली एसोसिएशन में कल जाके पोर्क के ऊपर एक किताब है, छोटी सी पैम्फलेट है, वो ले लो और उसको पढ़ो. अल्लाह ने फरमान किया है कि तुम ये मत खाओ, बस उसका फरमान है इसके लिए मत खाओ. उसमें वाई की बात ही नहीं आती. फिर भी डिटेल्स पढ़नी है तो इस्माइली एसोसिएशन में पोर्क के ऊपर छोटी सी बुकलेट है, वो खरीदो और पढ़ो. जिंदारो आपका शुक्राना अदा करता हूँ, मुखी कमड़िया साहिबों का, नामदार एसोसिएशन के चेयरमैन का, ऑफिसरों का और इन भाइयों का कि जिन्होंने मुझको ये आपकी खिदमत करने की तक दी. मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. जय जिंदा.